Myself, Dr. Amna Khan, a dynamic professional on the path to becoming a clinical psychologist. While my roots are in homeopathic dermatology, gynecology, and also in meditation hypnosis therapy, my journey has taken me through various realms of expertise. I hold certifications in UI UX designing, interior design, CCA, CSPD, and applied psychology, making me a well rounded individual with a keen eye for design and human psyche. And today's session, which I'm going to conduct, has been arranged by Doctor's Place Academy. Dr. Place Academy is an online platform where a highly professional team of medical experts will serve and help you to enhance your knowledge regarding medical staff through visual learning. Dr. Place Academy will also help you in your assignments. We also offer a variety of courses and we also collaborate with different platforms. You can share queries with us and we help you out. Master the OTB free YouTube courses are live classes on X-ray interpretation, ECG interpretation, non-invasive ventilation, clinical use, antimicrobial electrotherapy and thermotherapy, ultrasound gynecology and OBS, ultrasound abdomen, recorded lectures, CT, abdomen neonatal resuscitation, CT brain trauma management, ABGS management. Meet the founders of Dr. Place Academy, who are Dr. Mohammad Huzaifa, President of Dr. Place Academy, and Dr. Hur Abbas Zadi, who are the CEO of Dr. Place Academy. Stay connected with us for latest updates, course highlight, visit our website for more information, and get ready to embark on an enriching education journey. Our dedicated team is committed to helping you make informed and ensure your learning experience is in exceptional way. Do follow Dr. Space Academy on Facebook, Instagram, YouTube, and also you can get more information on their website. सबको मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे सिर्फ 3 लोगों का रिप्लाई आ रहा है, बाकी क्लास किधर है मेरी? Why they are not active in the class? आई वांट यू ऑल कि आप सब पार्टिसिपेट करें, मुझे सब साथ साथ जवाब दें ताकि मुझे पता हो कि आप लोग एक्टिवली मेरी क्लास को सुन रहे हैं. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन. Our today's session is on homeopathic dermatology session on eczema. Anyone who can tell me what is eczema? Anyone? Anyone who can tell me? Okay. Genius. ठीक. Okay. Next. Anyone? Very good. Dr. Hiba Mizhar. Bacterial infection. Hasnan. Hasnan Sajad. Very good. Okay. So, okay, let's move next. Moving on to the next slide. Eczema, also known as atopic dermatitis, is a condition that makes your skin itchy, red, and irritated. It can cause dry, scaly patches or blisters and often show up on the face, hands, and parts of the body. It is common in people with allergies or asthma and can get worse if you scratch it. एक्जिमा जिसे हम एटॉपिक डर्माटाइटिस भी कहते हैं एक जिल्द की हालत है जो आपकी जिल्द को खारिश सुर्ख और चिड़चिड़ा बनाती है. ये खुश्क खुरदरी धब्बों और या छालों का सबब बन सकती है और ज्यादातर चेहरे हाथों और जिस्म के कुछ हिस्सों पर नमूदार होती है.
ये एलर्जी या दमे का शिकार लोगों में आम है और अगर आप इससे खुरसते हैं तो बदतर भी हो सकता है। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक्जिमा की डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? सबको क्लियर है? ओके, आपको एक इमेज शो हो रही है जिसमें एक्जिमा आपको नजर आ रहा है। इस तरह ये होता है एक्जिमा, ठीक है? So let's move on to the next slide, which is types of eczema. There are total 5 to 6 types of eczema. First one is atopic dermatitis. Wait a minute. आवाज नहीं आ रही। No voice. अब आ रही है सबको? आ गई? चले। Okay, 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 okay. Atopic dermatitis is the most common prevalent form of eczema. It is a chronic condition often associated with a family history of allergic conditions such as asthma or hay fever. It causes redness, itching, and inflammation commonly occurring on the face, elbow, and knees. Atopic dermatitis एक ऐसी फॉर्म है एक्जिमा की जो कि आपको जेनेटिकली होती है। ये मोस्ट कॉमनली एस्थमा और हे फीवर के पेशेंट्स में ज़्यादा पाई जाती है। इसका जो मेन कॉज होता है वो रेडनेस होती है फेस पे, एल्बोज पे और नीज पे, इचिंग होती है आपको इसमें और थोड़ी इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, ये ज्यादातर आपको फेस यानी कि चेहरे पे, एल्बो यानी आपके कोहनी पे और नीज यानी आपके घुटनों पे निकलती है। सबको क्लियर है टॉपिक डर्माटाइटिस? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस। This type occurs when the skin comes into contact with an irritant or allergen. There are two forms. Irritant contact dermatitis caused by substance like soaps, detergents, or chemicals, and allergic contact dermatitis triggered by an allergic reaction to a specific substance like nickel latex or certain parlants. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस का क्लियर कर दूं। ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस आपको होता कैसे है? इसके 2 टाइप्स होती हैं। ये भी स्किन के अंदर आपको जब होती है तो रेड पैचेस आपको शो होते हैं। ये जिनकी वीडियो ऑन है वो ऑफ कर लें काइंडली। जिनका कैमरा ऑन है वो ऑफ कर दे काइंडली। सबा काशिफ, काविश, सबा काविश, टर्न ऑफ योर वीडियो। ओके, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस क्या होता है? एक एलर्जी की फॉर्म है जिसके 2 टाइप्स हैं आगे से। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो आपको होता है डिटर्जेंट्स यानी कि कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट्स जो होते हैं मोस्टली उनसे, या केमिकल्स लाइक सब्सटेंस, और मोस्टली कुछ लोगों को सॉप से भी हो जाता है। एंड सेकेंड वन टाइप इज एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो कि आपको होता है निकल लेटेक्स और सर्टेन प्लांट्स। निकल यानी कि आप वो होता है यानी कि ज्वेलरी वगैरह होती है ना, उससे होता है। बहुत ही ज्यादा आती है, बेल्ट, बकल्स, कॉइन्स, ऐसी चीजें, उससे आपको ये फॉर्म बनती है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस की। लेटेक्स मींस ब्लून्स, ग्लव्स वगैरह टाइप मटेरियल, इस तरह से लेटेक्स होता है, उससे आपको एलर्जिक होती है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस आपको क्लियर हो चुका है?
ठीक है, okay, moving on to the next slide. Next type is dyshidrotic eczema. This type eczema causes small blisters to develop on hands and feet. These blisters are often itchy and can be quite painful. यानी कि ये आपके हाथों और पाँव पे छोटे छोटे छालों की सूरत में निकलता है, और ये आपको जो है इसमें आपको खारिश भी होगी, और थोड़ा आपको ये इसमें आपको पेन भी होगा, यानी कि आपको इसमें दर्द भी महसूस होगा. This cause is not entirely clear, but it might be related to stress, allergy, or exposure to certain metals. ये आपको या तो स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा होता है, ठीक है, या आपको कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ये बनना शुरू होता है. आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? नो? ओके, प्लीज वेट अ मिनट. ये एक फॉर्म है जो कि आपको रैश की फॉर्म है. रैश की फॉर्म में होते हैं, आपके हाथ और पाँव में छालों की फॉर्म में बनते हैं, जिसमें अगर आपको इचिंग भी हो तो इचिंग के साथ साथ ये आपको इसमें दर्द भी महसूस होता है. ये मोस्टली आपके हाथ और पाँव पे निकलते हैं. अब क्लियर हुआ या नहीं? बेटा, जिनको समझ नहीं आ रही उनको मैं आपको आसान अल्फाज में ये समझा दूं कि ये छोटे छोटे छाले होते हैं, ठीक है, जो कि हाथ और पाँव पे निकलते हैं. हम कहते हैं ना, ब्लिस्टर्स को उर्दू में छाले कहते हैं, यानी कि ये स्मॉल ब्लिस्टर्स, यानी कि छोटे छोटे छालों की सूरत में आपके हाथ और पाँव पे निकलते हैं. ठीक है, आपको ये किसी मेटल्स की वजह से भी निकल सकते हैं, ये टाइप ऑफ एलर्जी भी बन सकते हैं, ठीक है. और अगर आप ज्यादा स्ट्रेस वगैरह लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है स्ट्रेस की वजह से भी ये मजीद आपके बॉडी पार्ट्स यानी कि हैंड्स और फीट्स पे स्प्रेड हो सकते हैं. अब क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमुलर एक्जिमा. दिस टाइप लीड्स टू कॉइन शेप और सर्कुलर स्पॉट्स ऑन द स्किन. ये आपको स्किन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे कॉइन शेप की जो है आपके ऊपर ये एलर्जी स्टार्ट होती है बनना. अच्छा, क्लास में तमाम पार्टिसिपेंट्स मौजूद है जिनको मैंने भी एडमिट किया, वो भी मौजूद हो गए कि नहीं? काइंडली मुझे वो प्लीज रिप्लाई कर दे जिनको मैंने अभी अभी ज्वाइन करवाया क्लास को. वालेकुम अस्सलाम. ओके. अच्छा जी, ये काइंडली डिस्टॉर्शन हो रही है, ये माइक ऑफ करें अपना. किनका माइक ओपन है? अच्छा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया मैं उनको पहले ही बता दूं कि आपको जो है इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में, ठीक है. जो मिस हुआ आपसे वो आप उसमें सुन लेना, देख लेना, ठीक है.
अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें अपना लेक्चर। क्वेश्चन वगैरह जो होंगे आपके सबके लास्ट में लूंगी मैं, ठीक है? अभी ड्यूरिंग द लेक्चर में किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगी। ओके, ठीक है। अच्छा, हम किस पे थे? न्यूमुलर एक्जिमा। दिस टाइप लीड्स टू कॉइन शेप और सर्कुलर स्पॉट्स ऑन द स्किन विच कैन बी वेरी इची। आपकी स्किन पे ये कॉइन शेप सर्कल के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है? और ये काफी, इसमें आपको इचिंग वगैरह फील होती है। इट ऑफन अपेयर स्किन आफ्टर स्किन इंजरीज, यानी कि आपके जिस्म के ऊपर कोई चोट लगी है उसके बाद ये मोस्टली आते हैं, या इंसेक्ट बाइट्स की वजह से होते हैं। इंसेक्ट बाइट्स में आ जाता है, छोटे छोटे होते हैं कीड़े जो आपकी स्किन के ऊपर काट लेते हैं, लेकिन आपको ना वो जब आपको एक्जिमा ये स्टार्ट होता है बनना, तो बाद में जाके आपको होता है ये अपीयर, ठीक है? आपको नहीं पता लगेगा कि आपको किसी इंसेक्ट ने बाइट किया होगा, ठीक है? और ये किसी भी एज में हो सकता है। ये क्लियर है आपको? ओके 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 ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये किसका माइक अनम्यूट है? काइंडली इसको ऑफ कर दे। जिनका भी माइक अनम्यूट है काइंडली ऑफ कर दे, डिस्टॉर्शन हो रही है क्लास में। अब मुझे क्लास में किसी का माइक ऑन मिला तो मैंने उसको क्लास से आउट कर देना है, ठीक है? अब मुझे किसी की डिस्टॉर्शन ना मिले क्लास में। अच्छा जी, द सेकंड लास्ट टाइप ऑफ एक्जिमा, seborrheic eczema dermatitis. This type causes scaly patches, red skin, and stubborn dandruff. It commonly affects areas rich in oil glands such as the scalp, face, and upper chest. अच्छा जी, ये वाली जो टाइप होती है, ये आपकी जो है वो स्कैली पैचेस, यानी कि आपकी जो है वो स्कैल्प पे क्रिएट होती है। इसके अलावा आपके फेस पे होती है। फेस के पास जहाँ पे हमारा मोस्टली जो होता है वो हेयरी पार्ट होगा, वहां पे अपेयर होगी, और अपर चेस्ट पे, ठीक है? जिनके स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं ना, उनको ये मोस्टली हो जाता है डर्माटाइटिस, ये वाली टाइप उनके अंदर ये ज्यादातर पाई जाती है, जिनका ऑयली स्कैल्प होता है, ठीक है? ये देखिए, इस तरह से ये बनता है, और इस तरह से ये सर के अंदर जिनका ऑयली स्कैल्प हो उनको ये बनना स्टार्ट होता है। क्लियर है ये पॉइंट? काइंडली क्लास को टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें आप लोग। आधा आधा घंटा क्लास में लेट आ रहे हैं, आधा लेक्चर आपका मिस हो चुका है। Okay, the next study, status dermatitis, typically occurring in the lower legs of individual with poor blood flow. This type is often related to circulatory problems. It causes swelling, redness and itchy skin. अच्छा, ये वाली टाइप होती है मोस्टली आपके लोअर लेग्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है? इसमें आपका जो है, अगर आपका जो ब्लड फ्लो है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका चल रहा है वो ही पुअर है, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन आपकी नहीं ठीक जा रही, तो उसकी वजह से ये वाला जो है स्टैटिस डर्माटाइटिस आपके लोअर लेग्स पार्ट पे अपेयर होता है। पुअर ब्लड फ्लो सर्कुलेशन की वजह से स्टैटिस डर्माटाइटिस आपके लोअर लेग्स के पार्ट पे अपेयर होता है, ठीक है? इसकी जो वजूहात हैं वो होती हैं, आपके लेग्स आपके स्वेल हो जाते हैं, और रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, और आपकी जो स्किन है वो इचिंग में आ जाती है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा हार्डिश होती है इसमें। क्लियर? स्टैटिस डर्माटाइटिस आपको क्लियर है? ठीक है, स्टैटिस डर्माटाइटिस में एक दफा लास्ट
टाइप है, मैं आपको एक दफा फिर क्लियर कर दूं, आपके लोअर लेग्स के पार्ट पे ये पेड़ होती है। ठीक है, अगर आपका ब्लड फ्लो पुअर है, उसकी सर्कुलेशन नहीं ठीक जा रही, तो उसकी वजह से होता है। दूसरा, आपका सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से ये बन सकता है। ठीक है, इसके कॉजेज होते हैं स्वेलिंग, रेडनेस और इचिंग, यानी कि ये आपके लेग्स के ऊपर है, वो स्वेल हो जाएंगी आपकी लेग, आपकी रेडनेस ज्यादा उभर के आपको दिखेगी। ठीक है, उसके अलावा आपको इसके ऊपर इचिंग भी बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। पहला सिम्टम हमारे पास है रेडनेस। अफेक्टेड स्किन ऑफन अपीयर रेड और इन्फ्लेम। दिस रेडनेस कैन रेंज फ्रॉम मिल्ड टू इंटेंस डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ कंडीशन एंड एनी ट्रिगर। यानी कि रेडनेस आपको पता ही है, आपकी स्किन पे जब वो अपीयर होती है तो वो अ, बहुत ज्यादा या तो बहुत थोड़ी होती है या तो बहुत ज्यादा अपीयर होती है। ठीक है, अब कंडीशन की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि वो, अगर तो आपका जो है क्या कहते हैं, टाइप ऑफ एक्जिमा जो भी आपको निकला है, वो मिल्ड है या इंटेंस है, तो उस हिसाब से आपके स्किन के ऊपर रेडनेस अपेयर होती है। सबसे पहला सिम्टम्स आता है रेडनेस। रेडनेस यानी कि इस तरह से अगर आपको होता है तो इस तरह से कि रेडनेस आपके एक्जिमा की किसी भी टाइप में शो होना स्टार्ट होती है। ठीक है, पहला था रेडनेस। सेकेंड सिम्टम हमारे पास है इसका इचिंग। इचिंग इज अ हॉलमार्क सिम्टम ऑफ एक्जिमा, यानी कि इचिंग एक खास अलामत है एक्जिमा की, हारिश होना। द स्किन बिकम इंटेंसली इची। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इसमें हारिश फील होगी, लीडिंग टू एन ओवरवेलमिंग अर्ज टू स्क्रैच। आप इसको बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म तरीके से अगर इसको हारिश करेंगे तो आपको वो स्क्रैचेस पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे इस पे। कंटिन्यूअस स्क्रैचिंग कैन फर्दर इरिटेट द स्किन एंड लीड टू पोटेंशियल इन्फेक्शन। अगर आप बहुत ज्यादा स्किन को क्या कहते हैं स्क्रैच कर देंगे उसको, क्या कहते हैं, स्क्रैचिंग करेंगे उसके ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं खराब हो जाएगी, और वो एक जो है वो इन्फेक्शन बन जाएगी, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन बन जाएगा आपकी। ठीक है, ड्राइनेस। थर्ड सिम्टम है इसका ड्राइनेस। एक्जिमा फ्रीक्वेंटली कॉजेज ड्राइनेस। द अफेक्टेड एरियाज माइट बी फील रफ, स्केली और डेवलप पैचेस दैट अपीयर रफ और लेदरी। ठीक है, एक्जिमा की थर्ड सिम्टम है ड्राइनेस। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ठीक है, आपको जो है वो थोड़ा आपको स्किन अपनी लेदरी टाइप फील होना शुरू हो जाती है, यानी कि चमड़ा नुमा आपको फील होना शुरू होगा। आपकी स्किन थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, आपकी जो वो स्किन है जिसके ऊपर एक्जिमा डेवलप हो रहा है वो आपको थोड़ा सा मोटा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इज द कॉमन रिस्पॉन्स इन एक्जिमा लीडिंग टू स्वेलिंग, हीट एंड डिस्कम्फर्ट टू इन द अफेक्टेड एरियाज। इन्फ्लेमेशन एक कॉमन रिस्पॉन्स है एक्जिमा का, जो कि आपको सूजन, सोजिश, ठीक है, स्वेलिंग, सोजिश या सूजन कह ले। हीट यानी कि आपको उसमें थोड़ी सी बर्निंग वगैरह फील होगी, और जो अफेक्टेड एरियाज होंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। ठीक है, ब्लिस्टर्स और ओजिंग। इन सर्टेन टाइप्स ऑफ eczema such as dysbiotic eczema, small blisters may develop which can eventually ooze fluid and cause additional discomfort। ब्लिस्टर्स और ओजिंग क्या होता है, यानी कि आपने अभी मेरे साथ एक टाइप पढ़ी एक्जिमा की, डायसिड्रोटिक एक्जिमा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे छाले बन जाते हैं। ठीक है, और सम टाइम वो इतने वो स्वेयर हो जाते हैं कि उसमें से आपका जो है ना वो रेशा नुमा जो होता है ना, फ्लूइड, फ्लूइड को कहते हैं रेशा। ठीक है, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो जो कि वो कॉज करता है, बहुत ज्यादा वो होता है, वो डिस्कम्फर्ट कर देता है स्किन को। ठीक है, क्रैकिंग और क्रस्टिंग। स्किन में क्रैक और डेवलप क्रस्ट स्पेशली इफ द अफेक्टेड एरिया हैज बीन स्क्रैच एक्सेसिवली। यानी कि आप अपने उस पार्ट को जहाँ पे आपको एक्जिमा डेवलप हुआ है कोई भी टाइप में, उसको आप बहुत ज्यादा स्क्रैच कर देते हो, बहुत हद तक कर देते हो, तो वहां पे आपको स्किन के अंदर क्रैक बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थिकन थिकन स्किन। Chronic scratching or rubbing due to persistent itching can cause the skin to thicken and become leathery or rough in the texture। ये मैंने आपको अभी बताया था कि आपकी स्किन पे जहाँ पे आप स्क्रैचिंग रबिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको मुसलसल खारिश हो रही है उसके ऊपर आप स्क्रैचिंग करते जाएंगे, तो वो एक चमड़ा नुमा एक मोटे टेक्सचर की सूरत में आपकी स्किन पे वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, डिस्कलरेशन। प्रोलॉन्ग एक्जिमा कैन लीड टू चेंजेस इन स्किन पिगमेंटेशन रिजल्टिंग
इन लाइटर और डार्कर एरियाज देन द सराउंडिंग द स्किन। आपके जहाँ पे एक्जिमा डेवलप हुआ होगा, ठीक है, अगर वो ज्यादा देर तक रहेगा आपकी स्किन पे, तो आपकी स्किन जो है वो पिगमेंटेशन स्टार्ट कर देगी। या तो स्किन बहुत लाइट हो जाएगी, या तो जो एरिया है स्किन का जहाँ पे है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। सिम्टम्स आपको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव गॉट कॉजेस। ओके जी, कॉजेस की तरफ हम आते हैं। जेनेटिक्स, people who with a family history of eczema, asthma और एलर्जी are more likely to develop eczema। ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में टाइप ऑफ एक्जिमा था टॉपिक डर्माटाइटिस के, आपका जो है वो जेनेटिकली भी हो सकता है एक्जिमा, यानी कि आपके घर में पहले से किसी को था, फिर वो आपके अंदर आया, यानी कि जेनेटिकली ब्लड टू ब्लड ये ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, सर्टेन जीन्स आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्जिमा। अगर आपके ये जीन्स के अंदर है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली में पहले से किसी को है, वो ठीक है, उसके बाद आपको हुआ, आपकी तरफ से वो आगे आपके जेनेटिकली ये फैलता जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेस, एक्जिमा इज लिंक्ड टू एन ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम विच रिएक्ट स्ट्रांगली टू इरिटेंट्स और एलर्जेंस लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन और स्किन सिम्टम्स। अच्छा जी, overactive immune system known as autoimmune response occurs when the body's defense mechanism mistakenly attack its own healthy cells। यानी कि जो आपके healthy cells थे, वो क्या नाम देते हैं उसको, जब वो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म मिस्टेकनली, यानी कि वो गलती से उस उन हेल्दी सेल्स को अटैक कर दे, ठीक है, तो कॉजिंग वेरियस ऑटो इम्यून डिजीजेस, तो उसकी वजह से ये आपके होता है एक्जिमा। ठीक है, हेल्दी सेल्स को अगर अटैक कर दे डिफेंस मैकेनिज्म, तो उसकी वजह से एक्जिमा होता है। दिस लीड्स टिश्यू डैमेजेस, ये आपके टिश्यू को डैमेजेस कर देता है। एंड रेंज ऑफ सिम्टम्स, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मैनेजिंग सिम्टम्स, यानी कि अगर आप सिम्टम्स को ही मैनेज कर लेंगे ट्रीटमेंट में, तो आपका ये खत्म हो सकता है। ठीक है, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, various environmental factors can worsen eczema or trigger flare-ups, including exposure to irritants like soap, detergent, certain fabric pollen, pet tender, dust mites, and certain foods. Changes in temperature, humidity, or exposure to extreme can also influence eczema symptoms। ठीक है, आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि environmental triggers में ये इन्वॉल्व है कि ये आपको किसी अ, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही मेरी वॉइस में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको क्या बता रही थी, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स में आपका आ जाता है कि इरिटेंट्स, यानी कि जो आपकी स्किन को खराब करने में आते हैं, वो होते हैं सॉप्स, डिटर्जेंट्स। ठीक है, सर्टेन फैब्रिक्स, अच्छा कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, उनको जो है वो सोप से भी हो जाता है, ठीक है, डिटर्जेंट से भी एलर्जी होती है। कुछ फैब्रिक्स होते हैं, उनकी टाइप्स होती है फैब्रिक्स की, जिन जो वो यूज नहीं कर सकते, उसकी वजह से भी स्किन के ऊपर क्या नाम देते हैं, एक्जिमा बन सकता है। ठीक है, पेट टेंडर यानी कि आपके घर में कोई आपका पालतू जानवर वगैरह हो, ठीक है, उसको आप केयर करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन उनके अंदर छोटे छोटे कीड़े नुमा होते हैं। पार्टिसिपेंट्स आ गया, हम अपनी क्लास को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया, सबको क्लियर था? ठीक हो गया। अच्छा,
मैंने अपनी वॉइस बेटा की हुई थी, इस वजह से आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा, काफी मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं साथ साथ देखती हूँ, जो आते जाएंगे उनको मैं ज्वाइन करवा दूंगी। अच्छा, हम किधर थे? कॉजेज के ऊपर। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स तक हमने कर लिया था, ऐसे ही है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स तक हमने कर लिया था, ऐसे ही है ना? ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये मुझे सबका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता जल्दी जल्दी? बहुत ही स्लो क्लास है मेरी। किस तरह एक्टिव होके बैठे, अटेंटिव होके सुना करे क्लास। पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में भी सभी हैं, ठीक है, यस मैम। अच्छा जी, ये इनका बार बार लेफ्ट क्यों होता है? चलो, जो लेफ्ट हो रहे हैं उनकी हेडेक है मेरे लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल स्ट्रेस और एंजाइटी कैन एक्सेलरेट एक्जिमा सिम्टम्स और ट्रिगर फ्लेयर अप्स। यानी कि अगर आपको एक्जिमा है और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, और तो जो होता है ना स्ट्रेस और एंजाइटी, वो इंसान के अंदर होता है, ठीक है। आप स्ट्रेस लेते हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं। बेटा ये मेरा मसला नहीं है, ये बार बार क्लास लेफ्ट होती है, इनको मैं ऐड करती हूँ, ये बार बार लेफ्ट होते हैं। अब जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको मैंने अगेन ऐड नहीं करना, वो उनकी हेडेक है, वो जाने। ठीक है। अच्छा, कॉजेस पे आ गए हम। अच्छा, मैं आपको बताती कि आपको जो स्ट्रेस है, अगर आप वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो आपका एग्जाम है वो काफी हद तक में बढ़ सकता है, एग्जैबरेट कर सकता है। नेट इशू है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। एंजाइटी, एंजाइटी एक जो है वो साइकोलॉजी का जो है ना, दूसरा बड़ा सिम्टम है। ठीक है, दूसरा बड़ा डिसऑर्डर कह लें इसको। अगर आपको एंजाइटी बहुत सिवियर लेवल पे है ना, और आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, तो आपको जो है ना वो एक्जिमा आपका एग्जेबरेट कर सकते हैं, यानी कि वो काफी हद तक में बढ़ सकता है। ठीक है। इसके अलावा जी नेक्स्ट हमारे पास है इच स्क्रैच साइकिल। स्ट्रेस कैन इंक्रीज द अर्ज टू स्क्रैच ड्यू टू रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द बॉडी। अच्छा देखें, अब आपकी स्किन पे क्या नाम लेते हैं, एक्जिमा निकला हुआ है, उसमें आपको काफी हद तक खारिश महसूस हो रही है, और आप उसको स्क्रैच करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो वो सर्टेन केमिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में रिलीज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो है वो एक्जिमा काफी हद तक बढ़ जाता है। स्क्रैचिंग इरिटेट्स द स्किन। आप उसको स्क्रैच कर रहे हैं तो वो स्किन को इरिटेट करता है, लीडिंग टू मोर इन्फ्लेमेशन। यानी कि बहुत ज्यादा हद तक वो बढ़ जाएगा, और वो एक बहुत सिवियर जो है वो एक्जिमा को कर देगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कॉज है इसका, हार्मोनल चेंजेस। स्ट्रेस कैन कॉज हार्मोनल फ्लक्चुएशन विच में कंट्रीब्यूट टू एक्जिमा फ्लेयर अप्स इन सम इंडिविजुअल। अच्छा, कुछ स्ट्रेस की वजह से। रिपीट कर दे प्लीज। अच्छा, स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर रिपीट कर दे प्लीज। जी बेटा जरूर, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। यानी कि अगर आपका जो स्ट्रेस है वो आपके हार्मोनल को जो है वो उतार चढ़ाव आपकी बॉडी में होता रहता है। स्ट्रेस की वजह से अगर आपके हार्मोनल चेंजेस में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो वो भी एक्जिमा की एक बड़ी वजह है। अच्छा जी, जैनब ने मेरे से भी कहा कि मैम स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर्स को रिपीट करते। देखिए जैनब, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस में हैं, ठीक है, या एंग्जाइटी में हैं, तो वो भी आपके एक्जिमा को बढ़ा सकती है। देखिए उसके नीचे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्ट्रेस कैन इंक्रीज द अर्ज टू स्ट्रेस ड्यू टू रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द बॉडी। जब आपके बॉडी के अंदर सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो वो जिस इंडिविजुअल को एक्जिमा निकला हुआ है, ठीक है, उसको वो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है एक्जिमा। अब वो उसको स्क्रैच करता रहेगा, उसको स्ट्रेस हो रहा है, वो उसको स्क्रैच कर रहा है, तो उसकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेम कर रही है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा उसमें पेन भी हो रहा है, उसको इचिंग भी हो रही है, तो उसको स्क्रैच करता रहेगा स्ट्रेस में आके, तो वो उसके एक्जिमा को बढ़ा सकता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आती है।
डायग्नोसिस इन होम्योपैथी। अच्छा जी, इसका होम्योपैथी में कैसे डायग्नोस किया जाए? पेशेंट कंसल्टेशन। The homeopathic dermatologist conducts a detailed consultation discussing not only the skin symptoms but also patient's। बेटा अपने क्वेश्चन आंसर आप पास लिख के रखें, एट द एंड ऑफ द सेशन में आपके क्वेश्चन आंसर लूंगी, ठीक है? अपने क्वेश्चन अपने पास लिख के रखें। अच्छा, पेशेंट पेशेंट कंसल्टेशन आ जाता है पहला हमारे पास डायग्नोस में, ठीक है? होम्योपैथिक डर्माटोलॉजिस्ट क्या करेगा? एक डिटेल कंसल्टेंट उसके साथ जो है वो करेगा क्लाइंट के साथ अपने, ठीक है? उसके खाली सिम्टम्स को नहीं जानेगा वो, बल्कि वो पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के बारे में पूछेगा, उसकी मेडिकल हिस्ट्री यानी कि उसके पास केस हिस्ट्री में क्या क्या था और क्या क्या उसने ट्रीटमेंट किया और क्या क्या नहीं था, ठीक है? जेनेटिकली भी और सब कुछ। उसके लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे, ठीक है? उसकी इमोशनल स्टेट यानी कि उसको स्ट्रेस एंग्जाइटी वगैरह या कोई डिप्रेशन तो नहीं है, ठीक है? क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन सिम्टम्स। डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं जो एग्जामिन करते हैं अफेक्टेड स्किन एरियाज को। वो देखते हैं कि noting the type and characteristics of eruption, including their appearance, distribution, color, and may associate a sensation like itching, burning और pain। अच्छा, ऑब्जर्व करते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी स्किन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी स्किन पे किस टाइप का एक्जिमा आपको निकला हुआ है और इसके सिम्टम्स किसके साथ जाके मैच हो रहे हैं, तो उसके बाद जाके ये जो होता है आपका पता चलता है कि आपकी स्किन पे इस टाइप का एक्जिमा निकला हुआ है, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगर्स। Homeopathic approach often emphasizes identifying triggers or factors that exacerbate the condition, such as certain foods, emotional stress, environmental factors, or specific substance। अच्छा, कुछ होते हैं वो कुछ लोगों को ना कुछ खाने होते हैं जिनकी वजह से एक्जिमा का चांस होता है बनने का, ठीक है? इमोशनल स्ट्रेस यानी कि वो स्ट्रेस में है तो उसकी वजह से भी होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि उसके इन्वायरमेंट में क्या है और क्या नहीं है उसकी वजह से भी होता है। और कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो एक्जिमा आपको बन सकता है। क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, सॉरी। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट। A natural remedy that matches all person's symptoms, not just the skin ones. This remedy helps the body to heal itself by using a very small amount of substance that in bigger amounts, which would cause similar symptoms. This help the body to balance itself and get better। अच्छा जी, नेचुरल रेमेडी। बेटा नो वॉइस। अच्छा, आपने अगर आपने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ तो साइड पे देखे ज्वाइन ऑडियो के ऑप्शन में जाके उसको चेंज करें। अच्छा जी, कुछ लोग बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं जो कि नेचुरल रेमेडी यानी कि आपके अगर होम्योपैथिक में आके अगर आप यूज करते हैं ना मेडिकेशन, मैं होम्योपैथिक के साथ नेचुरल रेमेडी इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रेमेडी, ठीक है? अगर आप वो यूज करते हैं तो उसके साथ भी आपका जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता है, और उसके साथ आपकी जो है वो बॉडी अपने आप को बैलेंस करेगी और आपकी जो है वो एक्जिमा को बेहतर बनाएगी। क्लियर? इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट मैं दोबारा बता देती हूँ कि होम्योपैथी इज ऑल्सो का नेचुरल रेमेडी, ठीक है? और ये फिर आप हम देखेंगे कि उस पर्सन को कौन सा टाइप ऑफ एक्जिमा है, ठीक है? उसके सिम्टम्स किस टाइप के में एक्जिमा के साथ जाके मैच हो रहे हैं, ठीक है? और क्या नाम लेते हैं, मेडिकेशन में जो उसके सिम्टम्स है वो किसके साथ मैच हो रहे हैं, हम उसको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? और उसके साथ वो जब इनटेक करता रहेगा तो उसकी बॉडी जो है वो बैलेंस बनाती जाएगी और उसके जो है एक्जिमा को बेहतर से बेहतर बनाती जाएगी, ठीक है? ठीक है।
अच्छा जी, लिविंग विद एक्जिमा, emotional distress. First point is emotional distress. Eczema visible symptoms such as redness, scaling, and itching can affect a person's self-esteem and confidence. Constant itching and discomfort can lead to frustration, embarrassment, and negative self-image. अच्छा जी, पहला पॉइंट हमारे पास है इमोशनल डिस्ट्रेस। अच्छा जी, देखिए जिनको होता है एक्जिमा, ठीक है, वो उसको रेडनेस है, स्केलिंग है, इचिंग है, ठीक है, उसके अंदर, तो वो पर्सन की जो है वो सेल्फ एस्टीम पे जाके आएगा, और दूसरा उसका कॉन्फिडेंस खराब होगा, ठीक है। एक्जिमा जिनको है, ठीक है, उसको रेडनेस है, उसको इचिंग है, इसमें उस पर्सन को अपनी सेल्फ एस्टीम पे ये बात बुरी महसूस होगी, और साथ में उसका कॉन्फिडेंस लो होगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट इचिंग एंड डिस्कम्फर्ट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन। अब वो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली खारिश करता रहेगा और डिस्कम्फर्ट होता रहेगा, बेआराम होता रहेगा, तो उसको वो मायूसी की तरफ लेकर जाएगा, एम्बेरसमेंट, यानी कि उसको शर्मिंदगी होगी, और उसका जो है एक नेगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो खुद के अंदर भी जो है वो शर्मिंदगी और मायूसी को बहुत ज्यादा डिवेलप करेगा। अच्छा, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया है, तो जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, और उसके बाद उसको मायूसी भी हो रही है, उसको शर्मिंदगी भी हो रही है, और उसको अपना जो है अपनी सेल्फ इमेज वो एक नेगेटिविटी में अपने आप को शो हो रही है। क्लियर? क्लास बी अटेंटिव, मुझे साथ साथ रिप्लाई करें। क्लियर है? ठीक है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, डीलिंग विद क्रॉनिक इचिंग यानी कि बहुत ज्यादा हद तक आपको खारिश हो रही है, आपकी नींद बेआराम हो रही है, अनप्रिडिक्टेबल और फ्लेयर अप्स कैन कॉज कंसिडरेबली स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा खारिश है, आपका स्लीप साइकिल खराब हो चुका है, ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ी वजूहात बन सकती है स्ट्रेस और एंजाइटी की। Fear of public scrutiny due to visible skin lesions can also lead to social anxiety. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि जिनको एक्जिमा होता है वो फिर ना जो है ना वो सोशली पब्लिकली नहीं बाहर जाते, ठीक है, उनको सोशलाइज करने में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि हमें जो है वो एक्जिमा है और हमें बहुत ज्यादा इसमें इचिंग है, बहुत ज्यादा इचिंग है, अब मैं किसी पब्लिक प्लेस में बैठ के इचिंग करूंगा तो मुझे भी है वो एक मायूसी होगी, इसको एक शर्मिंदगी भी होगी, ठीक है, तो इसकी वजह बनेगी वो स्ट्रेस में जाएगा, तो यहाँ तो वो एंग्जाइटी में जाएगा। ओके। Impact on daily life. The discomfort and unpredictability of eczema may disrupt daily routine, sleep patterns and social activities. अच्छा जी, एक्जिमा जो है आपका, अगर आपको एक्जिमा है तो वो आपकी डेली रूटीन के अंदर डिस्टॉर्शंस क्रिएट करेगा, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर देगा, और आपकी जो सोशल एक्टिविटीज हैं, बाहर आना जाना, सोशलाइजिंग, लोगों के अंदर मिलना घुलना, वो आपका सारा जो है वो डिस्टर्ब कर देगा। ओके। सोशल आइसोलेशन, पीपल विद एक्जिमा माइट अवॉइड सोशल इंटरेक्शन ड्यू टू एम्बेरसमेंट। ये देखिए, ये वही पॉइंट आ गया, अभी मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को एक्जिमा है वो शर्मिंदगी की वजह से सोशल इंटरेक्शंस को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अबाउट देयर अपीयरेंस ऑफ फियर ऑफ ट्रिगरिंग फ्लेयर अप्स इन पब्लिक सेटिंग, उनके अंदर वो जो है वो डर बैठ जाएगा, फियर डर को कहते हैं, ठीक है, खौफ, वो उनके अंदर बैठ जाएगा, और वो कभी भी पब्लिकली में जाके वो है कॉन्फिडेंटली फील नहीं करेंगे, वो बल्कि उसको एम्बेरसिंग फील करेंगे। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, प्रिवेंशन इन मैनेजिंग एक्जिमा थ्रू होम्योपैथी, अ होलिस्टिक अप्रोच इज एसेंशियल। Identifying and avoiding triggers, maintaining a balanced diet, using gentle skin care and staying hydrated are key. अच्छा जी, मैं आपको यहाँ बताऊं कि एक्जिमा को होम्योपैथी के थ्रू आपने मैनेज करना है, ठीक है। एक होलिस्टिक अप्रोच यानी कि आपके एक हेल्थ केयर, एक डॉक्टर जो होम्योपैथिक डर्माटोलॉजिस्ट हो, उसके साथ आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को, अपनी डाइट को आपने बैलेंस रखना है, अपनी स्किन केयर आपने अच्छी रखनी है, और उसके अलावा हाइड्रेटेड मीन्स आपने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना ताकि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे, और आपको जो है वो स्किन की जो इश्यूज हैं, एक्जिमा होगा, जितने भी टाइप्स हो गए, वो आपको कम हो, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अ स्टेबल एनवायरनमेंट प्ले अ रोल इन मैनेजिंग फ्लेयर अप्स।
अपने स्ट्रेस को आप मैनेज करें, ठीक है, आपने ज़्यादा इसको स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मुझे हो गया तो इसका मैं अगर इलाज करवाऊंगा तो ये ठीक भी हो जाएगा। अपने एनवायरनमेंट को आप अपना पॉजिटिव रखें और पॉजिटिविटी के साथ रहें, ठीक है। अगर आप नेगेटिव में आएंगे, ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे हो गया है अब ये ठीक नहीं होगा, तो वो आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाएगा, ठीक है। सीकिंग इन इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फ्रॉम अ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, ठीक है। आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है किसी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से, फोकसिंग ऑन रेमेडीज, फोकसिंग ऑन रेमेडीज मैचिंग इंडिविजुअल सिम्टम्स, ठीक है। आपने किसी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है। रेगुलर फॉलोअप्स, अपने आपको जो है आपने अपने प्रैक्टिशनर के पास अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहना है, ठीक है। और एडजस्टमेंट अपना करना है, अपने ट्रीटमेंट प्लान को अपने मैनेज करके आपने चलना है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग दी स्ट्रेटेजीज अलोंग अ साइड होम्योपैथिक कैन केयर कैन असिस्ट इन रिड्यूसिंग एक्जिमा सिम्टम्स। ये देखिए वही बात आ गई कि अगर आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर या प्रैक्टिशनर जो भी है उससे आप अपनी केयर करवाते रहेंगे मुसलसल, तो वो एक्जिमा को जो है वो रिड्यूस करता जाएगा और आपके जो है वो इम्प्रूव कर देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको अब आगे बता दूं, हमारा टाइम खत्म होने वाला है। एक मिनट बेटा, एक मिनट में इधर ही हूँ। अच्छा, क्लास में अब सब आ गए मेरे ख्याल से। सॉरी जिनको मैंने अभी एडमिट नहीं किया था, आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी, हमारे पास अब टाइम थोड़ा रह गया तो हम इसको जो है फटाफट वाइंड अप करते हैं, ताकि जो है, ठीक है। अच्छा जी, एक्जिमा के मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एक्जिमा, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिकेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे अब सारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, सब पार्टिसिपेंट्स आ गए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके ओके। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ी मेडिकेशन बताने जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू एक्जिमा ट्रीटमेंट ऑफ टाइप्स, ठीक है। अच्छा जी, पहला हमारे पास टाइप थी अटोपिक डर्माटाइटिस। अटोपिक डर्माटाइटिस में अगर ड्राई और रफ स्किन है तो आप उसमें ग्रेफाइट्स दे सकते हैं। मैं मेडिकेशंस के नाम ले रही हूँ, मेडिसिन के नाम ले रही हूँ, गौर से सुनिएगा, ओके। अटोपिक डर्माटाइटिस में आप ग्रेफाइट्स, पेट्रोलियम सल्फर, नाट्रम म्योर और रस्ट टॉक्स आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम, मिजेरियम, गल्फ गल्फीमिया ग्लोका, और इसके अलावा आप इसको देते हैं हिस्टामिनियम, ठीक है। ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जिसमें आप ग्रेफाइट्स, पेट्रोलियम सल्फर, नाट्रम म्योर, एलुमिना, बेंजोडियम, एर्सानिक एल्बम, फैगोपेरियम, मेजीरियम और रस्टॉक्स यूज करवा सकते हैं। डायसेटोटिक डर्माटाइटिस में सल्फर, ग्रेफाइट्स, रस्टॉक्स, मेजीरियम और नाट्रम म्योर यूज करवा सकते हैं। सबको वॉइस क्लियर है? जी हिबा, बिल्कुल आप ठीक बता रही हैं। अच्छा जी, सेबोरिक डर्माटाइटिस में आप काली सल्फ्यूरिकम, नाट्रियम में और ग्रेफाइट्स, फास्फोरस, थूज ऑक्सीडेंटल्स, कैलकेरिया कार्ब और आर्सेनिक एल्बम यूज करवा सकते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस में। लास्ट हमारे पास है स्टेटिस डर्माटाइटिस, जिसमें आप ग्रेफाइट्स, आर्सेनिक एल्बम और वाइपिरा ब्यूरस यूज करवा सकते हैं। बेटा ये आप मैनेजमेंट से पूछ लेना, ठीक है, आपको मैनेजमेंट इसका बता देगी। अच्छा जी, awareness आ जाती है। awareness, stop self medication, it can lead to incorrect treatment and adverse effect। प्लीज काइंडली सेल्फ मेडिकेशन स्टॉप करें, क्योंकि ये आपका जो है ट्रीटमेंट को मजीद खराब कर सकती है और आपके एडवर्स इफेक्ट्स दे सकती है, ओके। Seeking professional medical advice is essential for accurate diagnosis and proper treatment, as self medication poses potential risk।
ठीक है, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे प्रैक्टिशनर से, ठीक है, अगर आप मेडिसिन लेते हैं, एडवाइस, मेडिकल एडवाइसेस लेते हैं, तो वो आप डायग्नोस करवाते हैं, अपने डायग्नोस को, अपने डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुद सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो वो आपको मजीद किसी पोटेंशियल रिस्क की तरफ ले जाएगा, यानी कि आपके लिए, आपके जान के लिए खतरे की बात है। तो काइंडली अपनी जान के साथ मत खेलिए। दूसरों को भी अवेयरनेस दीजिए इस पे कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता जिस चीज का, आप उस पे ना इतना फोकस किया करें। तो कोशिश किया करें जो है। हैदर, मैं आपका जो है वो सेशन के में जवाब देती हूँ। हमारा टाइम बिल्कुल पूरा हो चुका है, तो मैं बस ये कंप्लीट कर लूँ। 2-3 स्लाइड्स हैं, ठीक है, वेट करें। अच्छा जी, कैन एनीवन टेल मी कि ये कौन सी टाइप है एग्जामा की? तो बता सकता है मुझे कौन सी टाइप है? एनीवन? तुक्का शुक्के मार लें। जी जी बिल्कुल, मैं भी अब अटेंडेंस आपको लिंक सेंड करूंगी, आप लगा लेना, ठीक है। पहले मुझे बताएं तो सही, क्लास टॉपिक, अभी सिर्फ एक रिप्लाई आया है मुझे बाकी सब भी बताएं, फिर मैं आपको बताऊं। और और इसके अलावा कोई और एक्टिव? ओके, प्लीज बताएं मुझे जरा। अब प्लीज काइंडली टाइप का नेम मेंशन कीजिए। अच्छा, ठीक, और इसके अलावा कोई और? रिलैक्स हो जाए, मैंने आपको इस पे कुटर नहीं लगानी। मैं सिर्फ आपसे कंफर्मेशन ले रही हूँ कि कौन सी टाइप है ये। टॉपिक टॉपिक टॉपिक। अच्छा जी, आपको ये टॉपिक लग रही है? आर यू श्योर? अच्छा, यहाँ पे मुझे भी किसने वो रिप्लाई किया था? चलिए अभी आप लोग बाकी सब भी जरा जवाब दे रहे, फिर मैं आपको एट द एंड इसको बताती हूँ, ठीक है। आप लोग सब जवाब दें मुझे साथ साथ। We can marked elevation in LGE level in atopic dermatitis. Atopic dermatitis. अच्छा जी, इसके अलावा कोई और जिसने बताना हो कि कौन सी टाइप है? हाँ जी, अच्छा जी। ये इन्फिनिक्स कौन है? ये है आपका नाम इन्फिनिक्स रखा था जब आप पैदा हुए थे? काइंडली अपने ना असल नेम के साथ आया करें। आप लोग अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करवाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा, ठीक है। अपने आप को अपने असल आइडेंटिटी के साथ शो करवाया करें हर जगह पे, ठीक है। इन्फिनिक्स, सैमसंग, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी आपका अपना नाम है, ओके। कॉन्फिडेंट हो के अपने नाम को शो करवाएं। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके। अच्छा जी, तो ये मुझे अभी यहाँ पे किसी ने कहा था, लेट्स सी, डॉक्टर आसिया रजाक, ब्लिस्टर डेसिड्रोटिक एक्जिमा। ये जवाब इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया था। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो डेसिड्रोटिक एक्जिमा होते हैं, स्मॉल ब्लिस्टर्स की सूरत में आपके हाथ और पाँव पे निकलते हैं। ये क्लाइंट मेरे पास आया था, इसके हाथ और पाँव पे ये एक्जिमा निकला हुआ था, ठीक है। तो आपने इसको देखने से ही पहचान रहे कि इसके हाथ पे निकला हुआ है और दूसरा इसके पाँव पे भी था, ठीक है। चलो जी, एनी क्वेश्चंस? फिर इसका हम बात जो है अपना वाइंड अप करें, क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो चुका है। जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम वाइंड अप करें इस लेक्चर को आप। जी जी, बताइए बताइए। एक मिनट मैं जरा बल्कि आप करें। सर्टिफिकेट्स आप अटेंडेंस लगाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको जो है वो
मैं इसका भी जवाब देते हैं। अच्छा, हैदर अली का जवाब देते हैं, बल्कि सबसे पहले हर पर मेडिसिन पे क्यों फोकस क्यों करते हैं, एलोपैथिक पे क्यों नहीं करते। अच्छा हैदर, मैं जो हूँ ना, आपको सबको एक यहाँ पे गुड न्यूज़ भी देना चाहूंगी कि जो है मैं होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजी का कोर्स करवाऊंगी डॉक्टर प्लेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं आपको जो है होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजी के ऊपर बता रही थी ज्यादा। डिड यू गेट माई पॉइंट? होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजी का कोर्स करवाया जाएगा, जिसके अंदर जो है वो सारा ओवरऑल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो बताया जाएगा मेडिसिन के साथ। प्लीज इनलाइट अबाउट द रोल ऑफ प्रोबiotics। डॉक्टर आसिया ने हैंड रेज किया, वेट अ मिनट। डॉक्टर आसिया, अगर आप थोड़ा इजी हो तो मुझे काइंडली आप जो है ना वो चैट बॉक्स में ही जरा अपना क्वेश्चन बता दें, फिर मुझे थोड़ा इजी हो जाता पढ़ने के लिए। एक मिनट, सामने एकदम ही सवाल शुरू कर दिए। अच्छा जी, यहाँ पे आसिफ खान ने जवाब किया था, प्लीज इनलाइटन अस अबाउट द रोल ऑफ प्रोबायोटिक्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीजन। अच्छा जी, इसका आपको मैं मेन रोल बता दूं आसिफ खान, कि ये आपको जो है प्रोबायोटिक्स जो है हेल्प योर बॉडी मेंटेन ना हेल्दी कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हेल्प योर बॉडीज कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिटर्न टू ए हेल्दी कंडीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब। यानी कि जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती है, तो प्रोबायोटिक्स में जो है वो रोल प्ले करता है आपको हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, हेल्दी कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ वापस ले जाने के लिए। क्लियर? जी मेराहान, जो आप मुझसे पूछे हैं स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ एक्जिमा होता है वो पर्सन टू पर्सन हो जाता है स्प्रेड, लेकिन मोस्ट कॉमनली जेनेटिकली ही आपको एक्जिमा होता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन बहुत कम देखा जाए तो होता है, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर आसिया रजाक, how to differentiate between the lesions of numeral eczema and tinea, because when tinea lesions start developing it really resembles the lesions of numeral. History of severe itching just like numeral lesions. अच्छा, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। ऐसा करते हैं, डॉक्टर आसिया रजाक का जो क्वेश्चन है वो मैं इनसे जो है वो पर्सनली ले लूंगी, ठीक है। डॉक्टर आसिया, आपका मैं जो है क्वेश्चन वो मैनेजमेंट से कह के आपका है वो क्वेश्चन आपको रिप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे सबको जो है मैं अटेंडेंस। हाँ हिबा मजहर, यू आर राइट। टीनिया में रिंगवॉर्म रिप्रेजेंट्स होते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, यस देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड, वी शुड चूज दैट वन। अच्छा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर टुडे सेशन, स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और लास्ट में मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देती जाऊँ कि डॉक्टर प्लेस अकेडमी जो है वो जल्द होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजी का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएगी, जिस जिसको जो है वो मैं ही कंडक्ट करूंगी, और 7 डेज अ वीक ये कोर्स हुआ करेगा। और जो है क्या नाम लेते हैं, उसमें हम जाके डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये सेशन था आज का, इसलिए मैंने आपको इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाया। और वेलकम वेलकम बच्चों। अच्छा, और